Hello everyone, we are back with another episode. Yeah, the day I entered in my post-graduation, I fell in love with orthopedics. Parallelly, you kept your vision आपको clear. अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए. वो कब महसूस हुआ आपको कि वाओ टुडे आई मेड इट? एक मिथ है गांव के लोगों में कि जाड़े में घुटनों के ऑपरेशन करा लिए तो जाम हो जाएंगे. स्पेशल तो नहीं कहूँगा बहुत, लेकिन ऐसा टाइम अब फिर ना आए. How you de-stress yourself after going home? Hello everyone, we are back with another episode, another shining star with us today. मेरा नाम शुभम जैन है and I'm your host for the show. Ultra Solar presents Shining Star with Shubham Jain, a talk show that inspired. Powered by Glamour Partner Shades, spiced up by PCA Masale, hospitality partner Hotel Golden Tulip, dessert partner House Sweet. Shining Star, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम रूबरू होंगे उन उभरते सितारों से, उन राइजिंग स्टार्स से, उन शाइनिंग स्टार्स से जो रियल लाइफ स्टार्स हैं. Who have impacted so many lives with their good deeds and good vision. With this, I would say, ऐसे ही एक उभरते सितारे से, ऐसे ही एक शाइनिंग स्टार से आज हम रूबरू होंगे हमारे इस शाइनिंग स्टार के मंच पे, who is a knee and a shoulder specialist. Ladies and gentlemen, let's welcome today with us Dr. Jitesh Jain. Hi Shubham. Thanks for having me here. It's genuinely a pleasure to be here. Thank you very much for giving your time, and we know how your entire process of the day is, but you have given us this beautiful time to us, and now the audience will get to know what exactly a doctor goes through and what exactly a doctor is giving and doing for the people. So sir, before I would say we start, एक छोटा सा शाइनिंग स्टार्स के कॉन्सेप्ट के बारे में शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. शाइनिंग स्टार्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंस्पायरिंग लोगों से और ऐसे लोगों से जिन्होंने लोगों के दिलों को छुआ है या अपने अच्छे प्रोफेशनल बिहेवियर से बहुत लोगों की ज़िंदगी में एक बेहतर एस्पेक्ट रखा है. इसी के साथ हम आज आपसे भी रूबरू हो रहे हैं और जानना चाहेंगे आपके बारे में सबसे पहले. Who is जितेश जैन एज एन इंडिविजुअल, और आपके रोजमर्रा के टाइम के अलावा हम जानते हैं यू आर अ डॉक्टर, आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में और भी जानेंगे. उससे पहले who you are as a person and how you been as a doctor. ये डॉक्टर की जर्नी कब शुरू हुई? Over to you. So I'm an orthopedic surgeon, and my practice primarily focus on the robotic knee replacements and treatment of sports injuries. I work as a consultant in RHL Rajasthan Hospital. Okay. Besides my clinical role as an orthopedician, I am a dedicated educationist. I have authored a textbook of orthopedics, that is Fundamental of Orthopedics, Wonderful. which is a popular title among budding orthopedic surgeons. I'm the founding director of targetortho.com, which is a biggest learning online platform for the orthopedic surgeons in our country. Sounds amazing. I think again an inspirational mark what you are laying in for the people who are budding and getting into the world of orthopedician, I would say. Yeah. Am I right, sir? Yeah, absolutely. Okay. So मैं जानना चाहूँगा ये डॉक्टर का प्रीफिक्स और सैल्यूटेशन बोले या डॉक्टर की डिग्री आपको कब हासिल हुई? I started in the field of medicine in 2001 when I entered in the MBBS. Okay. Then I did my master's in orthopedics from Aligarh Muslim University. Then I went on to do fellowship, National Board Fellowship in Sports Medicine from prestigious Sports Injury Center, Safdarjung Hospital. My training also includes international fellowships in many centers of repute like Singapore General Hospital, Queen Mary Hospital, Hong Kong, etc. Then I also bring cutting edge skills in robotic knee replacement for my patients. Having सुन के थोड़ा डर लगा मुझे, कटिंग एंड ऑल.
trained both in Germany and Greece. So this is all about my education and training. So पहली बार जब ये कटिंग वाला प्रैक्टिस किया तो एक ह्यूमन सेंसिटिव हार्ट तो होता ही है सबके पास. वी नो डॉक्टर्स आर मोर नोइंग अबाउट ऑल द ऑर्गन्स आई वुड से, बट उस समय थोड़ा सा डर लगा, तो थोड़ा सा झिझके थे, या ऑल स्ट्रांग एंड क्लियर विद द माइंड? मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? देखी है. फिल्म को छोड़ दो, उसमें तो संजय दत्त गॉन फेंट आई वुड से. डॉक्टर्स आल्सो हैव इमोशंस एट हार्ट. Fair enough. We respect that emotions and still keeping people so intact with their emotions when they come with so much. बहुत बार ऐसा होता है कि see, I'm an orthopedic surgeon, trained in joint replacements. ठीक है? Okay. Imagine मेरे फादर के नी खराब हो गए, उनको नी रिप्लेसमेंट करवाना है. तो अब ये सिचुएशन में आप एक बार सोचिए, मैं करूं अपने फादर को ऑपरेट या कहीं और भेजूं किसी और के पास, तो फादर कहेंगे मेरा बेटा क्यों नहीं ऑपरेट कर रहा, और मैं करूंगा तो मैं कहूंगा अपनी नाइफ किस पे चला रहा हूं, अपने फादर पे. आई थिंक वो जो बात है मेरे को मूवी रिलेट हो रही है, मुन्ना भाई एमबीबीएस. उसमें बोला था अ फादर विल शिवर व्हेन ही विल ट्राई टू ऑपरेट हिज ब्लड रिलेशन और चाइल्ड. सो इज इट समथिंग रियल इन द रियल लाइफ? आई हैव ऑपरेटेड around 9 or 10 of my relatives, including my brother, my mother. And your first experience? It was in 2023. Okay. मेरी वाइफ की जो फादर है, he got injured, his kneecap फटेगा. Okay. और वाइफ का फोन आया कि जल्दी से घर जाके देखो पापा गिर गए हैं. एक्सरे करवाया, क्लियर था कि नी कैप फ्रैक्चर हो गया. ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल केस फॉर अस, बट यू नो ऑपरेटिंग ऑन अ फादर, True. you can imagine Sense of emotions comes. Yes, the Anyway, immense pressure I could felt that time. ये सारी सिचुएशन से हमें गुजरना होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो तो रिलेटिव्स भी आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे, कहाँ जाएंगे? Respect to doctors I would say. हाँ, शायद हम लोग तो उसको उस बिहेवियरल साइंस को समझ नहीं सकते. आपने तो पढ़ी भी है, उसको अमल भी कर रहे हो. रिस्पेक्ट अगेन. सो सर, एक बेसिकली मेरे को तो बहुत रॉ पता है इसके बारे में. आप लोगों के पेशेंट्स के बारे में मैं जानना चाहूंगा. एमबीबीएस आई थिंक 5 to 6 years लगता है. स्पेशलिटी या एमडी होने में अगेन 2 to 3 years लगता है. 3 years. देन सुपर स्पेशलिटी भी कुछ होता है, 3 years. अगेन 2 to 3 years लगता है. सर, ये 10 से 15 साल का पेशेंस. Then come fellowships. Then comes fellowship as well. 1 or 2 years. 1 or 2 years. Then experience. So where you stand into this? There is no end. There is no end. Are you super specialty or specialty? I have done my super specialty in sports medicine. That is Wonderful. It is, we do after MS, Masters in Orthopedics. इतना धैर्य या इतना पेशेंस कैसे? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं आपसे. वो जो घर बैठ के वो जो बच्चे आने वाला इंडिया का फ्यूचर हैं और वो नोबल जॉब को आगे टेकअप करने वाले हैं, आज उनके लिए आप जैसा सिंसियर डॉक्टर और रेनाउंड डॉक्टर और अपनी प्रोफेशन में सो मच एक्सपर्टीज रखने वाले डॉक्टर आज क्या गाइड करना चाहेंगे ताकि दे शुड बी हेड स्ट्रांग एंड without any second thought they should gear up and become MD super specialty in the coming years? Please sir. See, आप सोच रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, तो फर्स्ट थिंग यू शुड लव योर फील्ड. ऑर्थोपेडिक्स इज माय फर्स्ट लव. Okay. From the very first early age. Yeah, the day I entered in my post graduation, I fell in love with orthopedics. Super. ये जरूरी है. अब कहते हैं आप लोगों के फील्ड में क्योंकि कि मैं अपने घर पे कम रहता हूँ, हॉस्पिटल में ज्यादा रहता हूँ. मैं ओटी में ज्यादा रहता हूँ. I know this. तो ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करो. So out of 24 hours, what portion of time goes in the hospital? I work 14 to 15 hours a day. Amazing. Sounds amazing. बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है आज के This बारे में. field requires relentless dedication. This field requires incredible hard working. आप नहीं कर सकते तो इस फील्ड में मत आइए. ऐसा नहीं है कि 8-10 साल पढ़ना ही पढ़ना है. You know, हर पढ़ने के साथ कुछ नया हम सीखते जाते हैं. We evolve every day.
मेडिसिन इज एवर चेंजिंग, एवरी डे साइंस चेंजेस, तो वी कीप आवर सेल्स अपडेटेड। मैं आज भी 2 घंटे पढ़ता हूँ, पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होती है मेडिसिन में। नहीं, वो अपडेशन इज एवरी हाँ, इन तो एवरी प्रोफेशन आपको इट ये इज सोचना ही नहीं है नीडेड। कि अरे 10 साल पढ़ाई करनी है, ऐसा सोचते हो तो इस फील्ड में मत आओ। Very well said, I would say. Dedication and clear mindset is needed in any profession. हाँ, डॉक्टर प्रोफेशन में it takes a decent time to become profound and expertise में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो again, a respect to you and to all the people in this profession. So थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स। ये क्या बचपन से ही था ख्याल कि मुझे, जैसे होता है बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, तो हमने भी खेला है, पर वो जब तक वो प्लास्टिक का स्टेथोस्कोप था तब तक तो ऑल गुड था, पर रियल लाइफ की जब बात करते हैं तो क्या इट इज अ ड्रीम यू विजन फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड? No. If you look at my family tree, I was essentially destined to be a businessman. I come from a strong business family. ओके, And honestly speaking, as a kid, I envisioned myself making deals, building companies, you know. I was totally fascinated by that world. इट लुक्स फ्रॉम यू समवेयर द एनर्जी ऑफ योर आईज, नो, इट सेज मोर देन व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। Yes, that time I was totally fascinated by business. But I had a very influential figure in my life, my mom. And she had a dream for me that I should enter in the medical field. Fortunately, I was good at studies, so I became an orthopedic surgeon. वाओ, But वो कहते हैं ना कहीं दिल में एहसास हमेशा रहता है जो आप बचपन से चाहते हैं। तो instead of building companies, I am busy in building lives back together in my operation theater. And Super. Shubham, tell you, funnily enough, I have found my way back to the entrepreneurship by creating this targetortho.com, which is a global educational business now. cool. Parallelly, you Yes. kept your आपको vision अपना clear. सपना नहीं छोड़ना चाहिए। Very good, very good. जो प्रोफेशन है, you should take a pride on it. Parallelly, you want to curate something of your own. ऐसे करते हैं। थैंक यू। Wonderful. Good to hear this. मतलब बहुत लोगों को ये नहीं लगेगा कि उनके वो अपनी पैरेलल जर्नी शुरू नहीं कर सकते। One stable good thing and then you want to create something for you एक टाइम बाद। I think यही आप सेकंड करेंगे। So डॉक्टर साहब, आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि इट वाज नॉट अ बचपन का सपना, बट इट वाज माय मॉम सपना। मैं इस बात को इससे रिलेट करना चाहूंगा। लास्ट कॉन्वर्सेशन वी वर हैविंग विद वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, शी आल्सो गिवन अ हार्टफुल थैंक्स टू हर मदर ओनली, एंड coming back to you today, you're also giving a heartfelt thanks to your mother only. So mothers are pride of for all of us, I would say. They're the back of the house and very strong roots for anyone to outshine. Like today we have Dr. Jitesh Jain with us. So sir, मेरे को ऐसा लगता है, काफी लोगों को लगता होगा, इमेज ऑफ अ डॉक्टर लाइक थोड़ा सा हैंडसम होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, मतलब ऐसा है? मैंने मेजॉरिटी को देखा है ऐसा। ये आप लोगों के प्रोफेशन में कुछ सिखाते हैं ऐसा? See, we all have grown up with the idealized image of a doctor, that he should be clean shaven, tidy, well dressed, But I tell you one thing, what I think about this image, that I think this is oversimplification to equate that outward image with the genuine competency. Let me explain this. Please go ahead ना। मेरे We'd love to जो hear. गाइड थे when I was doing my post graduation, Okay. वो क्या कहते थे कि a best surgical hands are far more handsome than a clean shaved face. Right? तो आपका डॉक्टर क्लीन टाइडी हैंडसम हो ना हो, he should have radical empathy. True. Very well said. वो नहीं होगा तो अब कितना ही टाइडी क्लीन रहिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस, बट प्रोफेशनलिज्म मैटर्स।
being a tidy, clean shaven, well dressed, and respectful is actually a crucial sign to respect for our patients and the seriousness of this work we do. तो yes, ये होना ही चाहिए. फर्स्ट कम्स विद द प्रेजेंटेशन. Yes. डेफिनेटली अगर आपके पास वो जादू की छड़ी या वो स्किल सेट नहीं होगा तो यू कैन नॉट गिव बेस्ट शॉट ऑफ योर्स लेटर. Yes, but the qualities a doctor should have are empathy. A doctor should be able to hear his patients. He should be able to look beyond the X-rays on those human stories which are not seen in the X-rays. ट्रू. फिर honest conversation. A doctor should inspire confidence in his patients, not by his charm but by his clarity. आप टाइडी हो, बहुत अच्छा है. अब Doctors' words goes like magic at that time. In what sense I would say that attendants, that family members are totally on doctors' statements. Operation theatre के red bulb के बाहर, when they are sitting and waiting what's next coming from the doctor's statement. At that time you guys are like, God. वो जो ट्रस्ट हमको फील करवाते हैं वो और किसी प्रोफेशन में हो ही नहीं सकता. इसके साथ एक सवाल है मेरा. इतने नोबल प्रोफेशन में आप हैं, ये एक्चुअली नोबल है. अभी इसके बारे में मैं आगे और बात करूंगा. When you got this feeling, वो कब महसूस हुआ आपको कि वाओ, टुडे आई मेड इट and I feel like I'm in a very right profession. Nobility To till the date you were doing for your mother. थॉट है. मैं एक बात कहता हूँ शुभम, आपको जीवन की सच्चाई या जीवन के बारे में जानना है ना, कोई जरूरत नहीं आप किसी आश्रम में जाओ, किसी महात्मा के पास जाओ, हिमालय जाओ. आप एक दिन एक बिजी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आ जाइए, आपको जीवन की सच्चाई पता लग जाएगी. नोबिलिटी में बताता हूँ एक एग्जाम्पल से. सपोज एक एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट होता है और फादर ब्रिंग्स हिज सन, बेटा बैडली इंजर्ड स्ट्रेचर पे है, इधर फादर है इधर मैं हूँ, और फादर मुझे कहते हैं सर सब आपके हवाले, बचा लीजिए. होता है मैक्सिमम. सो इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रस्ट अ टोटली स्ट्रेंजर प्लेसेस इन यू दैट टाइम. तो दिस इज द मोमेंट व्हेन नोबिलिटी स्ट्राइक्स यू. ओके. मैं ओपीडी में एक्सरे देखता हूँ, दिखता है मेरे को हड्डी 3 जगह से टूट गई है. पेशेंट मेरे सामने है, ऐसे होप देखते हुए कि क्या बोलने वाले हैं सर, और मैं उन्हें एक कहता हूँ कि हड्डी 3 जगह से टूट गई है. you can see the fear on this on you the say face of the patient. Based on the strength of the patient, or you always say this real and truth to the patient? I tell you. Next like moment, I'm very sensitive. I'm very sensitive. मैं उन्हें बोलता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, कल ऑपरेशन होएगा, परसों से फिर चलोगे. तो nobility hits you when you are able to translate patient's fear into a hope. True. Doctors are hope. That's why this profession is Nobel. Doctors are hope, and a very big ray of hope when it comes to the weakened point of the family. When there's somebody who is very close to them is there and their life is on stake, doctors are the ray of hope and the blessings of the God, I would say. With this, जिन्होंने इस experience को जिया है या जिस लोगों ने अपने उनके attendants आज भी hospitals में हैं, जब एक दिन उनका वो रिश्तेदार वापस back to home आएगा, that is just on the regular help of doctors and the team around doctors, I would say. Actually, we don't just treat a disease, we actually guard a life. Very true. Very when true. you get to know this difference, this profession becomes noble to you. मेरा आपसे ऐसे ही बात करते करते एक सवाल है, ऐसा कुछ होता है आप लोगों के जॉइंट इंडस्ट्री में, बोलेंगे ऑर्थोपेडिक इंडस्ट्री में, आई वुड से, और द प्रोफेशन में, इंडस्ट्री इज आई थिंक आई शुड टेक दिस वर्ड बैक, 4 सीजन्स केसेस ज्यादा कम आने का ऐसा होता है? ह्यूमन बॉडी डिविएट्स विद दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंटल थिंग? No, actually you're talking about the caseload. Patients. हाँ, पेशेंट्स का नंबर कब कोई ऐसा होता है सीजन्स में बढ़ता है? जैसे अभी सर्दी है, सर्दियों में जुकाम, खांसी, बुखार होना. Region to region, yes, होता है. For me as an orthopedician, we see less number of patients in winter.
फ्रॉम नवंबर टू जन फैब। ओके, मतलब होता है। उस समय एक मिथ है गांव के लोगों में कि जाड़े में घुटनों के ऑपरेशन करा लिए तो जाम हो जाएंगे। शहर में भी है ये, मिथ नहीं है, ऐसा नहीं लगता, जो बट ठीक है। गांव के बाबा वो रजाई से ही नहीं निकलते सर्दियों में जॉइंट सर्जरीज कहाँ कराते हैं। कितना सत्य है ये? ये है 100% सत्य है ये। विंटर्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट सबसे कम होते हैं। ओके, नंबर्स इंक्रीजेस बिटवीन Feb मार्च टू अक्टूबर। ये हमारा बिजी सीजन है। अभी डल सीजन होता है ऐसा। therefore you were able to give us this time, thank you. कोविड का टाइम था, मैं याद नहीं दिलाना चाहूंगा वो टाइम, It was a we horrible even don't want to recall that time, but you guys were like living gods. And today, through this platform, even through you, I would like to thank all these doctors fraternity and the entire crew of hospitals. You guys were living gods. You helped so many families. कितनों ने खोया है, पर काफी को आप लोगों ने बचाया है. At that time, your life was also on stake, and of those entire people who were there on ground, and your family was on stake as well when you go back home. क्या छोटा सा जस्ट बता पाएंगे उस समय का? Were you operating at that time? यस, उस समय इलेक्टिव सर्जरीज बंद हो गई थी। रिप्लेसमेंट तो कहाँ से ही होता। बिल्कुल चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरीज भी बंद हो गई थी क्योंकि नेसेसिटी नहीं था। हाँ, स्पोर्ट्स हो ही नहीं रहे थे। हाँ, बट एक तरह की इंजरीज आ रही थी और वो थी जो एल्डरली पीपल है, वो जब गिर जाते हैं घर में, उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है, रिस्ट हो जाता है, बैक इंजरीज है, ये सब आ रहे थे। हिप फ्रैक्चर इज एन इमरजेंसी in orthopedics. True, very true, very true. And for the old age people, though, or for any age, I would mortality is say. very high. He will remain confined to the bed for his life. No, तो उस समय जब ये आते थे तो we were left with one option only, that is surgery. कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम सर्जरी ना करें। लेकिन सर्जरी में सिर्फ मैं रेडी हूँ एज ए सर्जन कि मैं ऑपरेट कर दूंगा, बट वी हैव अ टीम वर्क होता है। तो नर्सिंग स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, एनेस्थेटिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, हम सभी काम कर रहे थे। और 90% ऑफ स्टाफ कॉन्ट्रैक्टेड दिस कोविड फ्रॉम पेशेंट्स। मेरे को भी हुआ था, सबको हुआ, बट ठीक है, ये इस प्रोफेशन में हो तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन। The life was on stake, sir. People are keeping them locked in the rooms. I had COVID in first wave, तब तो ट्रीटमेंट भी नहीं था। मैंने मेरी वाइफ को फोन किया, उसने कहा I got to know she's also a doctor? Yeah. Wow, doctor family. Yeah. वो IVF स्पेशलिस्ट है। Wow. तो सेकंड फ्लोर मेरा हो गया। पूरे जीवन में एक ही टाइम था जब पूरा सेकंड फ्लोर मेरे को मिल गया था वरना नहीं मिलता। फर्स्ट फ्लोर पे पेरेंट्स। ये तो वो स्टोरी है जैसे हयात में शाहरुख खान आया था भी आईफा के लिए, तो he got the entire floor. 2 हफ्ते तक। You're treating the entire floor at the time. कोविड का डर ही इतना था, बच्चे अलग, पेरेंट्स अलग, वाइफ अलग। Oh, you at your home? Yes, you're yes, saying okay. At home. हाँ, people were in their separate rooms. 2 वीक्स तक वो मेरे पास थाली आती थी खाने की, हम खाते थे, फिर वापस चली जाती थी। Thanks again for making people be strong at that moment. Beyond the medicinal support, I think mental support was needed at that time. कोविड का टाइम बहुत स्पेशल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा टाइम अब फिर ना आए। हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। God should not give this. इवनिंग में मेरे पास रिलेटिव आते थे राजस्थान। मेरा जो हॉस्पिटल, राजस्थान हॉस्पिटल, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कोविड ट्रीटमेंट सेंटर्स। I think their tagline is आपका अपना अस्पताल। हाँ, अपना अस्पताल। कोविड के और हर किसी को राजस्थान अस्पताल में एडमिट होना था। I belong to my native place is कुचामन सिटी, स्मॉल टाउन इन नागौर। तो वहाँ से जो पेशेंट आते थे, क्योंकि उनको पता मैं राजस्थान हॉस्पिटल में हूँ, तो इवनिंग में मेरे पास आते थे। वाइफ आती थी कि सर हस्बैंड एडमिट हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट इवनिंग में जाता था,
we have all gone through this time. Yes. And let's bring it It was to tough this time, really thing, tough this conversation, because जितना कम बोले जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना डीप जाते जाएंगे हम. तो I think again respect to that time where you guys supported so many families and lives. We come back to chill question now. स्पोर्ट्स सर्जन है आप, जॉइंट एंड शोल्डर एंड नी रिप्लेसमेंट की हेल्प करते हैं लोगों को, आप बहुत लाइफ्स को आपने किया है. अब मैं थोड़ा मेडिसिनल और डॉक्टर प्रोफेशन के अलावा आपसे जानना चाहूंगा, स्पोर्ट्स में आपका कैसा रुझान है? आर यू स्टिल प्लेइंग या कभी खेला है अपने स्पोर्ट्स में, और कौन सा क्रिकेट स्पोर्ट्स? आई लव क्रिकेट, प्लेइंग Wow. क्रिकेट. जब भी टाइम मिलता है, आज भी संडे को हम सारे कजन खेलते हैं. वाओ, नाइस. एनी फेवरेट प्लेयर? अब मैं क्रिकेट देख नहीं पाता. हाँ, इतनी ओटीज और इतने ओपीडीज रहते हैं तो कैसे समय मिलेगा आपको? When you are saying 15 hours you are giving to hospital. खेलते हैं. ग्रेट. तो इसमें सवाल मेरा ये आता है आपसे, इतने टाइम आपके डे टू डे लाइफ का आप हॉस्पिटल में देते हैं, तो आई थिंक नंबर ऑफ ओटीज और नंबर ऑफ ओपीडीज आप शेयर करना चाहेंगे? एक दिन में कितने? 15 hours is a too good time. See, I started my practice back in 2013. And as is true for any young surgeon, the initial couple of years were dedicated building trust and establishing my... Any profession, it is like that. Yes, Right. So, but in the last 8 or 10 years, my practice has truly hit its stride. And I have been consistently operating 3 or 4 cases every single day. So you can calculate, it must be tens of thousands now. Superb. In a day? 3 or 4 cases in a day. 3 or 4 cases in a day. Lovely. 15 hours of giving decent time to people who are looking forward to you. आप अपनी हेल्प कैसे करते हैं? How you de-stress yourself after going home? See, as I said, orthopedics is my first love. So doing orthopedic surgeries never give me stress. Okay. Even I find OT is the place where the noise from the rest of the world goes quiet. Okay. So I feel centered, Okay. capable there. So that sounds. मैं मानता हूँ एक आर्टिस्ट को एक स्पेस चाहिए होता है क्यूरेशन के लिए. You feel that kind of a thing at the time? मेरे लिए वो स्पेस है जो Wow. जहाँ मुझे लगता है कि बस मैं हूँ और मेरा पेशेंट है. What a No one else there. You are in the right profession then, I would say. As I said, You're loving your yes. thing, as you said, right? But yes, back to back consultations, 3-4 surgeries every day. So there should be some strategy to rejuvenate myself. Yes, that I want to ask. Recovery तो चाहिए. And for Stress that, नहीं होता, but exhaust तो होते ही हैं. उसके लिए कोई स्पेशल प्लान नहीं होता है, क्योंकि हर दिन का शेड्यूल ही अलग अलग होता है. स्पेशल प्लान तो कुछ बना नहीं सकते. मेरी वाइफ का हॉस्पिटल पास ही है. 5 बजे वो फ्री हो जाती है. 5 बजे यूजुअली आई एम अबाउट टू फिनिश माय सेकंड सर्जरी. तो जो छोटा सा ब्रेक होता है, हम अक्सर कॉफी शॉप पे चले जाते हैं दोनों. you and your Wife. better half. Yeah. Wonderful. That's kind of me time. 10 us time. Us time. True, very true. So ये जो 10 or 15 minutes का time है, that is good enough for me to rejuvenate myself. Wonderful. I think after seeing this session of ours, she'll gonna be super happy with you, I would say. This is for her? Or actually you mean it? No, ऐसा होता है. Super. And I keep my Sundays free for family. Good to hear this. That's kind of a partnership what you maintain among as a life partners. I'm blessed to have her in my life. Wow. मंत्री जी एक विजनरी लीडर हैं. Recently he started with a Fit India mission. Yes. Why I'm saying this visionary leader? He's seeing India going towards obesity, and he wants to immediate response to it by giving a right information to the people by having a Fit India mission. Sir, मैं देख रहा हूँ, हाँ, हमारे यूथ में भी and all age people are looking for yoga, meditation, gymnasium, running, sports. कल्चर बढ़ रहा है. पर जो मेरा सवाल है यहाँ पे वो ये है, जिम में ट्रेडमिल पे रन करने पे और जॉगिंग पार्क में करने में
कौन सा नी ज्यादा सेफ है? ओवर टू यू। नाइस क्वेश्चन शुभम। आई थिंक बहुत लोगों को एक Yes, सबकॉन्शियस माइंड ये- कहता भी है कि आई थिंक ट्रेडमिल पर रन करने में देयर नी विल गेट इम्पैक्ट, समथिंग लाइक दैट। आई हर बिलीव। महीने मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, स्पेशली फीमेल्स, ओके। who have started, Zumba and rope skipping and running on concrete surface. और उसके बाद they develop sudden pain in their knees. वो मेरे पास आते हैं कि अब तक तो बिल्कुल ठीक थे और अब पाँव में दर्द शुरू हो गया है। तो मैं सबसे पूछता हूँ, क्या कुछ नया अनएकस्टम्ड एक्टिविटी शुरू करी है आपने? ऐसी कोई नई एक्टिविटी जो अब तक नहीं कर रहे थे? जुम्बा, हमें वेट रिड्यूस करना है, जुम्बा शुरू किया। ओके। मैं उनसे पूछता हूँ, जब आप जंपिंग कर रहे होते हैं तो फ्लोर पे करते हैं, मैट पे करते हैं? ये तो जो कुछ भी होता है उस पे करते हैं। राइट। तो यहाँ मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि before jumping into these kind of activities like Zumba, jumping, rope skipping, even tracking, आप अपने एक बार अपनी फिटनेस को देखिए कि आप इसके लायक भी है या नहीं है, और आपको शुरू करना है तो कैसे शुरू करें। ओके। हमारे फीट आर वेरी मच रिलेटेड टू आवर नीज। तो कैसे? मैं बता रहा हूं, जिनका फ्लैट फीट होता है, चपटे पांव, हाँ, ऐसा कुछ होता तो है। yes, even 40% people in the world have flat feet. I think this is a very clear stats Yes, you have. yes, Oh. yes. 30-40% people have flat feet. सारे Okay. फ्लैट फीटर्स को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ को होती है, और वो कौन है ये नहीं पता। आपका फ्लैट फीट है और आपने जुम्बा शुरू कर दिया, आपने दौड़ना शुरू कर दिया हार्ड सरफेस पे, तो इट्स वेरी लाइकली दैट यू विल हैव नी पेन। That impacts come from the- यस, बिकॉज आप जब दौड़ रहे हैं तो जो आपका वेट बेयरिंग एक्सिस है वो डेविएटेड है बिकॉज ऑफ योर एबनॉर्मल फीट। आपके फ्लैट फीट है तो वो आपका अनइक्वल लोडिंग करता है नी की, और आपको नी पेन शुरू हो जाता है, नी कैप का पेन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आप जब भी इस तरह का कोई जिम में नई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, गेट योर फीट एग्जामिन्ड बाय अ स्पेशलिस्ट। Okay, coming back to you. आप अपने जिम कोच से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते Okay, हैं कि फ्लैट okay. फीट है तो एटलीस्ट कुछ आर्च सपोर्ट के साथ आप जुम्बा करें, Okay. और फिर हार्ड सरफेस पे रनिंग या जुम्बा नहीं करें, मैट पे करें। आई थिंक ये तो चेरी ऑन द केक बता दिया आपने फ्लैट सोल के बारे में। पर फिर भी मैं अभी भी जानना चाह रहा हूँ वो ये, क्या नीज हम ओपन पार्क में घूमते हैं, जो हमारे काफी लोग काफी साल से घूमते आ रहे हैं, वॉक घूमना डिफरेंट हो गया, रनिंग ब्रिस्क वॉक एंड ब्रिस्क वॉक एंड ट्रेडमिल पे करना, इन दोनों में कुछ फर्क है या इट्स ऑल नहीं, वन? both are different kind of cardiac fitness activities. ओके। सी, जब तक आपकी नीज हेल्दी हैं, हेल्दी से मेरा मतलब है उनमें कोई पेन नहीं है, ठीक है। तब तक आप दौड़िए, आप सीढ़ियाँ उतरिए, चढ़िए, आप सारी एक्टिविटीज करिए, योगा करिए, जुम्बा करिए, रोप स्किपिंग करिए, डू एवरी एक्टिविटी यू वांट टू डू। ओके। बट जिस दिन आपको घुटने में दर्द शुरू हो गया है, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ क्या है, जब तक चलते रहोगे तब तक घुटने चलेंगे, हाँ, ऐसा भी है। और ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। जब तक घुटने चलेंगे जब तक वो हेल्दी हैं। जिस दिन हमारे घुटने में दर्द शुरू हो गया है उस दिन, और हमने किसी से कंसल्टेशन नहीं लिया, हमें नहीं पता वो नी पेन क्यों हो रहा है, और हम अपनी एक्टिविटीज जारी रखते हैं, हम दौड़ना चालू रखते हैं, दर्द के बाद भी नहीं दौड़ना है, 4 किलोमीटर तो चलना ही चलना है, यू विल लैंड इन आर्थराइटिस। बड़ी जल्दी आपके पूरे नीज खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है क्रक्स ऑफ द स्टोरी, जब तक आप हेल्दी नीज हैं, आपको कोई दर्द नहीं है, चलते रहिए, बोथ प्लेटफॉर्म्स आर फाइन। यस। लेकिन जिस दिन आपको घुटने में दर्द शुरू हो गया, गेट देम एग्जामिन्ड बाय एन स्पेशलिस्ट। ओके। सो बॉडी टाइप का फर्क से यस, डिविएट होता है। कुछ नई एक्टिविटी करते ही घुटने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपके पांव फ्लैट हो सकते हैं। ओके। ओके। तो कुछ फुटवेयर। सवाल मेरा इसके साथ एक ये भी आता है, जुड़ता हुआ सवाल है इससे। किसी ने बोला
किसी डॉक्टर से बात हो रही थी, आई थिंक ईयर्स बैक की बात होगी, मेरे दिमाग में अभी अभी आया है ये बात. 60 years old person and 25 years old person. 60 years old person के नी यंग हो सकते हैं, ऐसा है बात. और 25 इयर्स ओल्ड के मतलब डैमेज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अगेन इसका आंसर वही है वही मैंने है, अभी बैड दिया. प्रैक्टिस यस, or not the right guidance. मॉडरेशन इज द बेस्ट पॉलिसी इन एवरी फील्ड. करेक्ट. हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, घूमना ही नहीं है, टीवी देखना है, दिन भर सोते रहना, बैठे रहना है, तो भी हमारी नींद खराब हो जाएंगे. और हम डेली 4 किलोमीटर दौड़ेंगे तो भी नींद खराब हो जाएंगे. True. I would submit with this conversation with that way, guys. किसी के भी अगर नीज में पेन हो रहा है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आज हमारे को, बाय ड्यूरिंग द वॉक, जॉग, ट्रेडमिल पे या कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए, तो उसको आगे ना बढ़ाएं. आर्थराइटिस का खतरा रहता है. कंसल्ट योर नियरबाई डॉक्टर. बहुत सारी माइनर इंजरीज होती हैं जिनको ट्रीट बड़ी इजीली किया जा सकता है, बट इफ वी इग्नोर देम एंड वी कीप ऑन डूइंग ऑल दोज एक्सरसाइजेज, क्या होएगा, हम वो इंजरी का लेवल बढ़ा लेंगे. ट्रू, वेरी ट्रू. That's with any injury. इसीलिए मैंने कहा जब तक आपको नी में पेन नहीं है आप चलते रहिए, लेकिन जब पेन हो गया है तो पेन के साथ वॉक नहीं करना. करेक्ट. विद दिस आई वुड से बहुत अच्छे से इलैबोरेटिव आपने इस सवाल का जवाब दिया है. बहुत लोगों को एक इलैबोरेटिव आइडिया लगा है फ्लैट सोल होता क्या है आज. 30-40% इज अ वेरी बिग चंक. शायद इसका आपका कहने का मतलब है हर 5th or 6th house could be this. Not all flat features have problem. That you have conveyed already. It's not pathological, it's physiological. Correct. Body dimension के accordingly भी vary करता है. Right. So again एक लाइटर सवाल पे आ जाते हैं. ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जो किसी कस्टमर या उसकी फैमिली ने आपको दी हो, कस्टमर वोंट बी अ राइट आइडिया, पेशेंट ने दी हो या उनकी फैमिली ने दी हो, दे गॉन यू विद हार्टफेल्ट थैंक्स and on that day you even felt wow. एक ऐसी कोई स्टोरी, मुझे पता है आपके बहुत सारी स्टोरीज होंगी. Yes. For anyone? कुछ हैं जो दिल के बहुत करीब है. हाँ. I would like to share one or two such stories. एक बार मेरे पास एक भाई अपनी बहन को लेके आए थे. Okay. इवनिंग का टाइम रहा होगा. सर इसका फिजिकल एग्जाम है और इसको दौड़ना है, लेकिन जब भी दौड़ती है पाँव में दर्द हो जाता है. स्कूल टाइम किया था कि PHE आई वुड से. हाँ, PHE पीरियड. हाँ, राइट. ओके. है ना. और फिजिकल क्लियर नहीं करेगी तो इसका और कोई फ्यूचर नहीं है. हाँ, कुड बी इन स्पोर्ट्स. ओके. हाँ, राइट. तो आई एग्जामिन दैट यंग गर्ल और सेम फ्लैट फीट. मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई, स्ट्रेंथनिंग क्या करना है, स्ट्रेचिंग क्या करना है, फुटवेयर मॉडिफिकेशन दिया. कुछ बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं था, जस्ट एक एडवाइस थी जो उसको सही नहीं मिल रही थी. उसने फॉलो किया रिलीजियसली एंड शी क्लियर्ड हर फिजिकल एग्जाम. वंडरफुल. स्टोरी छोटी सी है लेकिन आप इसका रिवॉर्ड मैं बताता हूँ. उसके भाई ने कई सालों तक अपनी व्हाट्सएप के डीपी में मेरी पिक्चर लगा के रखी. That's a very मुझे नहीं big पता story. अभी भी उसका ये रखता हो तो. That's a very big story. अपने Has she achieved what she wanted to achieve? शायद कोई फिजिकल एग्जाम रहा होगा टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब. ओके. वंडरफुल. आपने किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए रोते देखा है? वाइफ्स को तो बहुत देखा होगा, हस्बैंड के लिए रोते हुए. मैंने देखा है, मेरे ब्रदर को देखा है मैंने. And on that day I felt like कि tell you one there is a love. story. Sometimes it's not मेरे being पास expressed. एक यूपी से एक कपल आए थे. उनकी जो वाइफ थी, उनके नीज ऐसा थे 60-70 डिग्री बैंड एंड शी वाज कन्फाइंड टू हर बेड फॉर लास्ट 1.5 years. चलती ही नहीं थी. Okay. ऐसे केसेस में सर्जरी बहुत चैलेंजिंग हो जाती है. एक तो चलती नहीं तो बोन्स वीक हो जाती है, उनके टूटने का डर, ऊपर से इतनी डिफॉर्मिटी उसको करेक्ट करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो हमने उनकी सर्जरी करी. पहले तो कॉन्फिडेंस दिया कि ठीक हो जाएंगी. बिल्कुल. फिर नी रिप्लेसमेंट किया, ठीक हो गई, चलने लगी. तीसरे दिन जब वो पहली बार चली, आई वाज टेकिंग माय वार्ड राउंड्स. ओके. और हस्बैंड स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ किड. वो उसने कहा कि मैंने पहली बार इतने समय के बाद अपनी वाइफ को चलते हुए देखा है, with the help of walker of course. 100%. We all can feel the emotion. Yes, I'm still in contact and again a magic with those patients. What doctors can bring to the human life. हाँ, मुझे लगता है कि
sometimes it's very rewarding to be a doctor. सुपर्ब स्टोरी आई वुड से. बहुत सारी होंगी आपके पास, बट ये दो भी बहुत इंस्पायरिंग है, व्हाट यू जस्ट कन्वेड. फूड हैबिट्स जो आज के दौर में जो थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है. हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं. देन जंक फूड हैज़ बिकम समवेयर अ पार्ट ऑफ द जर्नी. जो वेस्टर्न विंड्स हैं आज इम्पैक्ट इंडिया में भी बहुत स्ट्रांगली कर चुके हैं. इस दौरान कहीं ना कहीं ऐसी फूड हैबिट्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे और जो आप खुद भी प्रैक्टिस करते हो, जिससे हमारे बोन्स बेटर रहें या मेंटेन रहें. कहीं ना कहीं हमने अपना हमारा जो खाना है, आपने भी अपनी बचपन में अपनी थाली देखी होगी, हम क्या खाते थे, ब्रेकफास्ट क्या करते थे, लंच क्या करते थे. करेक्ट है. तेरा चेंज उसको पीछे छोड़ दिया है. मेरा जो टिफिन बॉक्स होता था उसमें एक सब्जी होती थी और 2 पराठे होते थे. मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता था स्कूल जाने से पहले यही होता था. मम्मी जो देती थी उपमा होता था और दूध होता था. ओह, यू हैव नॉस्टैल्जिया हो गया एकदम. ओके. है ना? कहीं ना कहीं वो अब हम वापस उसी डाइट प्लान पे आ रहे हैं. हाँ, वो भी हो रहा है. एक पैरेलल रेशियो ये भी चल रहा है. मिलेट मोटा अनाज खाते थे, हाँ, जो बाजरा, जो रागी, ये सब खाते थे, हम वापस उसी पे लौट रहे हैं. करेक्ट है. बैक टू द आई टेल यू, दाल old इज times. सुपर फूड. करेक्ट है. इंडियन जो दाल है, इट्स Okay. सुपर फूड, रिच इन आयरन एंड मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स. ओके. हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, बटर मिल्क, कर्ड, these are very good source of calcium and other minerals. पीपल आर गोइंग वीगन ऑन द पैरेलल जर्नी. ये लोग भी हैं. From a clinical point of view, it's not a good idea to be a vegan. ओके. ओके. आई थिंक फॉर द वेजिटेरियंस तो डेफिनेटली Vegetarian, ठीक है, चलेगा. ओके. Vegan is not a good True, idea true. From clinical point of view. ओके. उसमें बहुत सारी deficiencies. You're likely to get, to become deficient ओके. for many nutrients. ओके. So, coming to the क्वेश्चन बैक. question back, 3 जो आप देखोगे ना, अभी सोशल मीडिया पे फ्लड आया हुआ है अच्छी डाइट प्लान को लेके. हर किसी के मोबाइल में एक डाइट प्लान मिल जाएगा. मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा. राइट. फॉलो कितना हो रहा है वो बात अलग है. हाँ, फॉलो कितना हो रहा है वो अलग बात है. लेकिन आज सब अवेयर है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. ट्रू. और बहुत मुश्किल होता है डाइट प्लान को फॉलो करना. 10 में से 9 जने नहीं कर पाते. ये डेटा है, फैक्ट्स है. 10 में सच से भी 9 है. जने नहीं डाइट प्लान को फॉलो कर पाते. बिल्कुल सही है. अब मैं खुद का कहूँ तो हम क्या करते हैं, मेरी पर्सनल, प्रोटीन इज द किंग ऑफ डाइट. आप प्रोटीन Yes. रिच डाइट लीजिए. यस. स्प्राउट्स, ब्रेकफास्ट, रात में दाल ले लिया, फिर राजमा, पनीर, सोया, टोफू, वेजिटेरियन डाइट की मैं बात करूँ तो ये सब हो गया. फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दीज आर रिच इन आयरन एंड अदर मिनरल्स. सिंपल खाना है, सब जगह मिलता है. बिल्कुल ट्रू है. फिर हर घर और रसोई में मिलता हर है. घर में रसोई में इट्स वेरी चीप फूड, इजीली अवेलेबल. शुगर इज द साइलेंट एनिमी. रिफाइंड शुगर, वाइट वन, एनी काइंड ऑफ शुगर, एनी काइंड ऑफ शुगर. जूसेस, वो कभी नहीं पीना. मैं ब्रांड के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जो मम्मा चॉकलेट मिल्क बना के पिलाती है, दिस इज द बिगेस्ट एनिमी आई वुड से ऑफ योर हेल्थ. ओके. तो नहीं पीना है. शुगर शुड बी अवॉइडेड. रिफाइंड शुगर 70-80% शुगर होती है इनके अंदर. आपको जितना कैल्शियम, जितना पोटेशियम, जितना आयरन ये दे रहे हैं, उतना एक अमरूद से मिल जाता है. फ्रूट्स खाइए. डेली आप एक बॉल फ्रूट का लीजिए जिसमें अलग अलग कलर के 3 या 4 कलर के फ्रूट्स हो. नट्स लीजिए. नट्स में ऐसा नहीं काजू खाए जा रहे हैं. अखरोट खाइए, बादाम स्वाद नहीं. खाइए, स्वाद नहीं. फायदे देखे. एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. सिंपल फिटनेस, आप फिट रहोगे. आपने एंटायर बॉडी का प्रोपोर्शन बता दिया. इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट पोर्शन. यस. एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता है, नहीं कर पाते. ठीक है. डिड यू एवर फील इमोशनल? ये सवाल हमने पहले थोड़ा सा समझ लिया है, पर थोड़ा और डीप डाउन समझना चाहेंगे. डिड यू एवर फेल्ट इमोशनल व्हाइल ऑपरेटिंग? See, whenever we operate, we
वी आइसोलेट द द एरिया. जैसे मैं घुटने का ऑपरेशन कर रहा हूँ तो हम घुटने को सेपरेट करते हैं. ओके. वी पुट अ कर्टेन ताकि पेशेंट का फेस हमें नहीं दिखे. ओह. ओके. तो आई थॉट ये इसलिए करते कि पेशेंट को वो इंजरी ना दिखे, ऑपरेशन ना दिखे. दोनों वाइस वर्सा. Vice versa? हाँ. Okay, nice. So there is no emotional connect Maybe we are getting the other side of the doctor as well, me no? and patient. Okay, both are humans at the end of the day. Yes. उस समय क्या होता है, the me and the anatomy. हाँ. बस. There is a connection between me and the anatomy. But ये तब तक ठीक है जब तक आप के ऑपरेटिंग टेबल पे आपका कोई नियर एंड डियर ना हो. Yes. Yes. I tell you one story. The entire thing changed when my brother wheeled into my OT. He घूमने कहीं गया था. He fell into a trench. Got severely Elder or younger? younger brother. Okay. अंकल चाचा मेरे चाचा उन्होंने एक्सरे भेजा. एक्सरे देख के ऐसे वो कहते हैं ना शॉक में आ जाना. ब्लैंक हो गया सब. He got severe injury over the elbow, badly damaged, smashed हो गई. Oh. We call it terrible triad. It's one of rare injuries we see in the orthopedics. बहुत मुश्किल challenging केस होता है. I discuss with my colleague. सबका एक support system होता है हॉस्पिटल में. I have one of my friend. Discuss all the things with him. उसने कहा इसको रेफर कर दे, हमें नहीं करना है. एक तो हाँ, ये सुना मैंने हॉस्पिटल्स में होता है. वेरी कॉम्प्लेक्स केस. ऊपर से भाई. तो मैंने कहा किसको करूं. Again there was a pause in the movement. You yourself was thinking about it. I discussed with my colleague. Oh, okay, yes, true. उसने कहा रेफर द केस. भाई को रेफर कर दो. हमें नहीं करना. ठीक बोला है वैसे तो. But मैंने कहा you किसको? might say right. Yes, मैंने कहा किसको रेफर करूं. Okay. फिर हमने सोचा ऐसा कौन है जिसको इस रेयर इंजरीज का एक्सपीरियंस है. कोई होता ही नहीं है. These are rare injuries. सबको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है. मैंने कहा कि हम ही करेंगे. ऐसा कोई है नहीं जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो इसका, तो हम ही करेंगे. That came from inside of yours. या मैंने उसको कहा हम करेंगे. As a doctor or as a brother? As a brother, as a doctor, they both collide and I told him that ये मैं करूँगा. Wonderful. क्योंकि कहीं था ही नहीं जहाँ रेफर कर सके. और भाई का पूरा एल्बो खराब, डैमेज हो गया. But I tell you, इतना आसान नहीं था ये डिसीजन. ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर आफ्टर 1 hour of surgery, we had no idea what will be the next move. And you can imagine my entire family was sitting outside the operation theater waiting for my call. 1 घंटे के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें. बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहा होगा. No one can imagine the immense pressure I felt that time. वहाँ सारा ऑर्थोपेडिक्स ज्ञान एक तरफ चला जाता है. सिर्फ भाई होता है और ऑपरेटिंग सर्जन होता है. Perfect है. I was struggling for reconstruction of that elbow and I had no idea what should be done. But ठीक है. Rahul was with me, Dr. Rahul, my colleague, friend. Okay. Yes. हम दोनों ने मिलके किया and after 2.5 hours we were done. And thankfully he is back to full recovery now. And seeing him doing all activities is the most rewarding outcome in my career. Another success story coming. But मैं बताता हूँ जब भाई ऑपरेटिंग टेबल पे होता है तब इमोशंस आते हैं. यही जानना चाह रहे थे हम. आते हैं. कि डॉक्टर्स आल्सो हैव अ स्ट्रांग इमोशंस. Doctors are human beings. True. रोबोट तो होते नहीं है. True. We respect that. So आपने शुरुआत में जब अपना परिचय बता रहे थे, थोड़ा सा हम आपके बारे में जान रहे थे, तब आपने बोला आप एक ऑथर भी हैं. Yes. ये कब शुरू हुआ? कब आपको लगा किताब लिखनी चाहिए जो और एस्पायरिंग डॉक्टर्स तक पहुंचे? Since childhood I have writing habits. मैं लिखता था. Okay. बचपन से. Okay. And I have written even quite a few poems which have been published in newspapers also. थोड़ा सा मैंने songs भी लिखे हैं, poem भी लिखी है और टेक्स्ट बुक लिखा है. That side also you have the songs writing and all. हाँ, ये मैं करता हूँ. ठीक है. बहुत सारी poem तो publish भी हुई है मेरी. टेक्स्ट बुक लिखा है because ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है तो मेरे को करना ही है. Amazing.
एंड जो कंटेंट है targetortho.com पे कंटेंट सारा मैंने लिखा है. तो अगेन इट्स रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स. तो लिखना तो मेरी हैबिट में है. Nice. Then first book launched when? 2015. Okay. And how many books you have wrote till date? 2 edition have come so far of the fundamental of orthopedics, and another one book is in pipeline. Okay, another one is also coming up. Yeah, And when we can see that, and where we can it look is also forward. related to orthopedics only. And okay, but where we can look forward after this session. I have also started writing. You also have turned a fan of yours, no? A book on human stories, the emotions which we have while treating the patients. तो इसमें बहुत सारी stories है. I have completed 5 chapters. Okay. There will be 10 chapters. So couple of months में वो भी आ जाएगी. And where we can find that books? On Amazon. Amazon पे मिलेगा. Great. ये जान के अच्छा लगा कि you are an author as well. तो doctor, author, managing your parallel vision or hobby as a platform on e-commerce. Very amazing to hear this. A few pieces of guidance that you would like to give to our listeners today, being a ortho, कि body movement या कुछ ऐसा जो उनके रोजमर्रा के aspect को थोड़ा easy कर दे. See, bones and joints. Or they could help some of your family members during any sort of small injury. Bones and joints are fundamentals of freedom. जब तो मैं यहाँ कहूँगा आप अपनी बोन्स एंड जॉइंट्स का ध्यान रखोगे आज तो वो कल आपका ध्यान रखेंगे. ठीक बात है. जैसा मैंने कहा, आप चलिए जब तक आपके घुटनों में दर्द नहीं हो. आप एक्सरसाइजेस करिए, हाथ घुमाइए जब तक आपके कंधे में दर्द ना हो. लेकिन जिस दिन दर्द शुरू हो गया है उस दिन प्लीज कंसल्ट डॉक्टर. खुद कोई प्रैक्टिस ना करें. माइनर इंजरीज होती हैं दैट कैन बी ट्रीटेड इजीली, लेकिन हम इग्नोर करें और वो फिर बड़ी इंजरीज लेके आते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं. So you want to say joints से related कुछ भी हो, don't ignore it. Yes. And don't try this at home. And moderation is the best policy, as I said. Okay. True. You have said earlier as well. I would say here, consistency is better than intensity. मतलब Very well said. 30 डिग्री हम 30 मिनट्स हम वॉक करें डेली, इट इज बेटर देन 2 hours जिमिंग once a week. Okay. Sounds something interesting again. आप रोज 30 मिनट वॉक करिए. हाँ. ये आपके जॉइंट्स बोन को बहुत हेल्दी रखेगा, बजाय इसके कि आपको टाइम नहीं मिलता और आप एक वीक में 2 बार 2 घंटे 2.5 घंटे की एक्सरसाइज करके आ गए, फिर एक वीक नहीं गए, फिर करके आ गए. ये आपको प्रॉब्लम करेगा. हाँ, बॉडी का 30 मिनट्स वॉक आप डेली करते हैं तो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर जॉइंट्स. जैसे एनी स्पोर्ट्स भी प्ले वार्म अप करना पड़ता है. स्पोर्ट्स खेलिए. स्पोर्ट्स इज अ वेरी फील्ड स्पोर्ट्स. कैरम खेलना नहीं, चेस खेलना नहीं. आउटडोर. Yes. आप आधा घंटा रोज खेलिए, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, वो टाइम. डॉक्टर साहब, आजकल चल रहा है, आई वुड से ये सवाल बहुत अमेजिंग रहा. आई वुड से इसमें बहुत सारी जानकारी मिली हमारे को एज अ गाइडेंस टुवर्ड्स कैसे अपने जॉइंट्स के दौरान आपको कुछ भी पेन हो रहा है या थोड़ा बहुत कुछ इंजरी हुआ है तो actually try to consult the doctor. Yes. Don't in relation to the bones or joints, don't try your expertise. Don't become doctor of yours. Nowadays we are realizing कोई भी joint pain हो, डॉक्टर के पास जाओ, orthopedicians के पास जाओ, they recommend vitamin D tablets. रिपोर्ट आती है, मेरे भी कुछ परिचित की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी. ये क्या चल रहा है? ये कोई नया एपिडेमिक आ रहा है इंडिया की तरफ या व्हाट एग्जैक्टली इट इज? प्लीज एनलाइटन अस. आपने कभी अपना विटामिन डी करवाया है? टचवुड, अभी तक तो मेरे को ठीक लग रहा है. आप कभी किसी रिलेटिव की रिपोर्ट देखना. विटामिन डी का जो वैल्यू होता है वो होता है 30 से अबव है, ठीक है, 30 से 20 डेफिशिएंट, 20 से नीचे डेफिशिएंसी है. सनलाइट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. अब हो क्या रहा है, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ.
100 जनों का विटामिन डी कराएंगे, 90 विल बी डेफिशिएंट। तो Big chunk? ऐसा क्या हो गया ऑल ऑफ सडन कि इंडिया में सब विटामिन डी डेफिशिएंट हो गए हैं? हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था। आपने आज के 10-15 साल पहले जब हम पढ़ते थे, हम सुनते भी नहीं थे विटामिन डी के बारे में। ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया है कि रिपोर्ट सब करा रहे होंगे आप लोग। वी ऑल हैव बिकम डेफिशिएंट इन विटामिन डी? ओ, ओके। और इज इट रियली सो कि हम सभी विटामिन डी डेफिशिएंट और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं? नहीं। होता क्या है, ये जो डेटा है, देखो जो भी स्टडीज होती है, मोस्ट ऑफ these studies are conducted in European or American countries. We follow Okay. those guidelines. हाँ, what I also They hear. are white skinned Okay. people, and vitamin D is very much connected to your skin color. आप फेयर स्किन है, आपका विटामिन डी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा नेचुरली। Okay. हम ब्राउन स्किन है, हमारा विटामिन डी लेवल कम होगा। Okay. जो अफ्रीकन से ब्लैक स्किन, उनका और कम होगा। Okay. इसका मतलब क्या हुआ, यूरोप में 30 विटामिन डी लेवल जो कट ऑफ है, दैट इज फाइन, बट इज Okay. नॉट फाइन फॉर अस। हमारा 20 है तो भी ठीक है, अफ्रीका में तो 20 के नीचे तो भी ठीक है। Okay. It varies from region to region Yeah. and body type as well. यस। Okay, skin type. बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशंस जो लैब देती है रिपोर्ट, दे मेजर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। Oh. ऐसा भी बहुत होता है। तो फिर क्यों लिख रहे हो आप लोग विटामिन डी की टैबलेट्स? आई डू नॉट रेकमेंड विटामिन डी टेबलेट्स। ओके, आप नहीं करते हैं? हाँ, ओके, आजकल नहीं हो रहा है ये। Okay. आप विटामिन डी कराओगे, डेफिशिएंट आएगा ही आएगा, क्योंकि बिकॉज वी आर सीइंग based on the standards from the other. यस Okay. ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। हमारा लिए बेस विटामिन डी इज सफिशिएंट। Cool. Cool. तो विटामिन डी, So there is no epidemic, nothing to worry. ऐसा नहीं है। Okay. सबका विटामिन डी, हम करवाते ही नहीं विटामिन डी लेवल। Thank you, Dr. Saab, for enlightening us with this. बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी भी थी एंड समवेयर एक पैनिक मोड आ रहा था, और बहुत लोग कुछ हैबिट्स में चालू भी करते थे इनटेक करना। हर जॉइंट पेन विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होता, ना कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। ओके, ओके। तो प्लीज डोंट स्टार्ट ईटिंग कैल्शियम ऑन योर ओन। ये जो सवाल, ये आपने जो कैल्शियम की बात कर ली, सब बोलते हैं विमेन आफ्टर 30s और 35, इवन मैन 65, 30-35 बिल्कुल नहीं। 50 के पहले कैल्शियम खाना पाप है यदि आप कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं है तो। अगेन नॉलेज 50 मेजर से पहले पीपल, आपको कैल्शियम नहीं खाना है। फूड में एक मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है? नथिंग टू डू विद बोन पेन, ओके, विद फ्रैक्चर हीलिंग। ओके, जब तक कि आपका कैल्शियम लेवल कम नहीं होता, और कैल्शियम लेवल मैंने अभी तक रेयरली किसी पेशेंट का कम देखा है। ओके, कैल्शियम इंडियंस में दूध से मिलता है, दही से मिलता है, शहद से मिलता है, रोटी से मिलता है, अनाज से मिलता है, मिलेट से मिलता है, दाल से मिलता है, इवन पानी में भी कुछ कैल्शियम होता है। करेक्ट है। हम कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं होते, मोस्टली नहीं होते। वंडरफुल, वंडरफुल। कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है हमारे इंडिया को। वी आर सुपरली गुड विद कैल्शियम, एंड ये एक्स्ट्रा इनटेक करने की आवश्यकता नहीं। टिल द टाइम योर डॉक्टर डजंट प्रिस्क्राइब यू, वी आर ब्लेस्ड विद ब्राउन स्किन। यू आर ब्लेस्ड विद ब्राउन स्किन। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव द ब्राउन स्किन। कैल्शियम तो हमारी डाइट में है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। इतना सब जानने के बाद आपसे मैं और हमारे ऑडियंस ये जानना चाहेंगे, आप कहाँ परामर्श का समय देते हैं, और आपकी कोई पर्सनल क्लिनिक प्रैक्टिस भी है, ये जानना चाहेंगे। आई सी पेशेंट्स इन राजस्थान हॉस्पिटल ओनली। ओके, मंडे टू सैटरडे मेरा ओपीडी होता है वहाँ पे। संडे ऑफ, संडे ऑफ रखते हैं आप, एंड द टाइम इज 11 to 3 11 to 3 ओपीडी रखते हैं every आप। day। ओके, नाइस। तो डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, आफ्टर नोइंग हिम सो बेटर एंड ही इज लविंग द प्रोफेशन सो अमेजिंगली, राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में स्थित है। वहाँ पे आप डॉक्टर जितेश जैन से मिल सकते हैं और इनकी गाइडेंस से क्योर हो सकते हैं, रादर देन द मेडिसिन व्हाट ही प्रिस्क्राइब इफ नॉट नीडेड। सो आई थिंक कुछ और ऐसी कोई स्टोरी, आप इतनी स्टोरीज इंस्पायर कर रही है आपकी स्टोरीज, कुछ ऐसी कोई स्टोरी एक और मैं जरूर जानना चाहूँगा। मेरी क्यूरियोसिटी और शायद ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। ऐसी कोई स्टोरी कुछ जो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड हुई हो, वहाँ पे फैमिली बहुत इमोशनल हो गई हो, कुछ जो
आप संभाल पाए हो लेटर एंड यू मेड द फैमिली हैप्पी? सी, सर्जन की लाइफ में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं। ओके। एक स्टोरी मैं बताता हूँ। इवनिंग टाइम में मेरे पास इमरजेंसी से कॉल आता है, सर कहीं जाइएगा मत, एक लड़की का हाथ कट गया है और वो आ रही है इमरजेंसी में। कम अगेन। एक लड़की का जो गांव में जो फॉडर कटिंग मशीन होती है चारा काटने वाली, उसमें हाथ आके फिंगर्स अलग हो गई हैं। Okay. और दे आर रशिंग टू द हॉस्पिटल। ओके। इन सच केसेस वी हैव टू बी वेरी क्विक, क्योंकि टाइम इज एवरीथिंग। हमने टाइमली इंटरवेंशन किया। मतलब हाथ कट गया? हमें न्यूज़ ऐसी आई हाथ कट गया है, बाद में मैंने देखा फिंगर्स कट गई थी। ओके। बैड। मैंने अपनी टीम को प्रिपेयर किया, वेस्कुलर सर्जन, हैंड सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, सारा स्टाफ। यू हैव दिस एंटायर टीम? या अच्छा, ऐसे केसेस में एक पूरी टीम वर्क चाहिए होता है। बिल्कुल। फिर इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है, मैं देखता हूँ एक लड़का एक पॉलीथीन के अंदर फिंगर्स लेके आया है अपनी सिस्टर की, सिस्टर साथ में होती है। बाबा। फिर उसके फादर आते हैं, फादर कहते हैं सर 1 महीने बाद बेटी की शादी है, आप ही की बेटी है, आप हाथ बचा लीजिए तो शादी हो जाएगी, नहीं तो ना हाथ बचेगा ना बेटी ना मैं। Is this a real story? This is the very true story. You got goosebumps? आपको मेरे को अभी how- बोलते कैसा हुए वो लगा? याद आ रहा है तो एक्सपीरियंस ही होती है। बाप रे। उस समय मैंने देखा उनके साथ लगभग 100 और लोग थे, तो मैंने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों? बोले 1 महीने बाद शादी है, 50 लोग ससुराल पक्ष से, 50 लोग गांव के हैं, और सब जानना चाहते हैं हाथ बचेगा या नहीं मुझे एक बचेगा। मूवी याद आ रही है, आई थिंक विवाह। OMG, ये ऐसा सा ही रिलेट हो रहा है। एंड हाउ यू डिड इट, एंड डॉक्टर जैन वाज देयर इन दैट टाइम आल्सो इन दिस वे। इस टाइम से आपने तो नहीं किया वो कुछ? Anyways, Let's come back to लक्ष्मी नाम था उस लड़की का। वी शिफ्टेड लक्ष्मी टू द OT। हमने सर्जरी करी, सर्जरी वाज अ सक्सेस, सब अच्छा गया। मेरा OPD के बाहर एक ग्लास पार्टीशन है, और आई कैन सी अक्रॉस दैट ग्लास कि वो मेरी OPD के बाहर 100 जने पूरा 3 दिन तक बैठे रहे, जब तक इस लड़की को हमने डिस्चार्ज नहीं कर दिया। तीसरे दिन राउंड पे मैं देखता हूँ उसकी 4 में से 3 फिंगर्स ब्लैक काली पड़नी शुरू हो जाती है। अब हमें दिख जाता है कि ये नहीं बचेंगी, ठीक है। फिंगर्स नो? हाँ, 4 फिंगर्स में से 3 फिंगर ब्लैक हो जाती है। हम एक्सप्लेन करते हैं कि इनको हटाना पड़ेगा, लड़की के फादर को भी विद हैवी हार्ट, बट समटाइम्स आवर एफर्ट्स डू नॉट मीट आवर एक्सपेक्टेशंस। डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, यस, डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, वो अंगुलियां हम नहीं बचा पाए। 3 अंगुलियां हमें काटनी पड़ी। जैसे ही मैंने ये बताया, 1 घंटे के अंदर सारे लोग चले गए, पूरी भीड़ गायब। बचा कौन? उसका भाई और उसके फादर। बैड। फिर नोबडी वाज देयर। अगले दिन फिर हमने वापस रिमूव दीज फिंगर्स जो ब्लैक हो गई थी, डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को, ठीक है। फिर हम भूल गए। 1 महीने के बाद मेरी जो नर्स है वो दौड़ती हुई आती है, सर OPD में देखो कौन आया है। मैंने कहा कौन आया, भेजो। एक शादी के जोड़े में एक लड़की थी और उसके साथ एक लड़का खड़ा था, ऑब्वियसली उसका ग्रूम होगा। लड़की क्या दिखाती है मेरे को, ऐसे ही ये वाला फिंगर, एक ही फिंगर बची हुई थी। सर रिंग फिंगर। बैंग ऑन, अमेजिंग। बोले इसी में तो रिंग पहननी थी। मैंने कहा 3 अंगुलियां जो गई। अरे सर कोई बात नहीं, आपने ये बचा ली ना, इसी में रिंग पहननी थी। आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, एंड क्लैप फॉर दैट गर्ल, आई वुड से। क्लैप फॉर हर हस्बैंड। हाँ, उन जनाब के लिए भी पूरी बहुत सोसाइटी के अगेंस्ट जाके उसने उस लड़की से शादी करी। वही लड़का था, वही सेम लड़का। इंस्पायरिंग स्टोरी। और जो उसने मुझे बताया कि सर 1 अंगुली तो बचा दी, बहुत थी शादी करने के लिए, अंगूठी तो पहननी थी शादी की। बिग थिंग। मतलब आपने जो किया उसके बाद आप जो एक फील कर रहे हैं उस मतलब पर्सन के लिए, it cannot be expressed in words. wonderful. Wonders happens and it happens around you only. So you have to figure out. Again, उनके भी आप पे थैंक्स, एंड उन जनाब को भी थैंक्स जिन्होंने उनको अपनाया और तहे दिल से अपनाया। वंडरफुल। व्हाट अ स्टोरी अगेन। हमें भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। Right. हर इंसान खूबसूरत है, और आई थिंक जर्नी अपने आप ब्यूटीफुल हो जाती है। यही शायद आप सेकंड करेंगे मेरी बात को। तो अब साहब, ये स्टोरी, ऐसी कई स्टोरीज हम
आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और हमारे लोग भी आज के बाद जो ऑडियंस देख रहे हैं वो भी आपसे जुड़ना चाहेंगे। जयपुर में ही ऑपरेट करते हैं या जयपुर के अदर या राजस्थान के अदर रीजन्स में भी ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ जयपुर में। ओनली जयपुर यू आर अवेलेबल? यस। ओके। इसी के साथ बिफोर सबमिटिंग आवर सेशन मैं चाहूंगा एक मैसेज जो आपके पेशेंट्स को, जो रहे हैं कभी पेशेंट्स, आपके चाहने वालों को, आपके फॉलोअर्स को, आपके फ्रेंड्स फैमिली को, हमको, ऑडियंस को एक मैसेज कुछ देना चाहते हैं आप आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ऑनेस्ट रहिए। डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस आर द 2 golden words which we require to get success in any profession. Stay healthy, stay fit, and keep hydrated yourself. Thank you. Superb. All right. With this, we come to end of this beautiful episode. We would like to thank Dr. Saab for being there with us and inspiring us with so many beautiful and inspiring memories. इसके बाद बहुत लोग तो आज एक इमोशनल ड्राइव लेके जाएंगे with that bride and groom story. बहुत लोग अपने फैमिली और जॉइंट्स का ध्यान रखेंगे. I would like to also thank my main sponsor, Ultra Solar, our powered by sponsor Shades, Hotel Golden Tulip, PCA Masale, House Sweet. Thank you everyone for joining us. जाने से पहले आज का ज्ञान, खुद पर है विश्वास तो मंजिल है आसान. आप भी हो सकते हैं अगले शाइनिंग स्टार. Till then, see you all in the next episode. Thank you. Namaskar. Do not forget to follow us, like us, and subscribe us.